میں نے دیکھا تو ڈیرے پہ بہت رش لگا ہوا تھا۔ کافی سارے لوگ میرا ابا کے ساتھ آئے ہوئے تھے اس کے گواہ کے طور پر، لیکن ہمیں تو کوئی فکر نہیں تھی۔ پھر ہم جیسے پہنچے تو چودھری کا ملازم میری امی کو لے کے ایک کمرے میں چلا گیا اور پھر میں وہاں آ کے بیٹھ گیا۔ پھر 10 منٹ بعد چودھری بھی آ گیا اور آتے ہی مجھے ہاتھ ملانے لگا، مجھ سے حال حوال پوچھنے لگا۔ میرا ابو اور اس کے آئے ہوئے تمام گواہ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ چودھری مجھ سے مل رہا ہے۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا، ہاں بھائی، کیا کہا تھا تم نے؟ بتاؤ، تمہارا بیٹا آیا ہوا ہے۔ پھر میرے ابو کہنے لگے، میرے بیٹے کو کیوں بلایا ہے؟ اس کی ماں کو بلاؤ نا، میرا اصل جھگڑا تو اس کے ساتھ ہے۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا، شرم کر شرم، میں مردوں میں اس کو بلا لوں؟ تو بس بتا کہ سامنے اصل بات کیا ہے۔ پھر میرے ابے نے وہی گسی پٹی باتیں، یہ وہ فلاں ہیں ڈمکاں ہیں، کچھ جھوٹ اور کچھ سچ۔ پھر اس نے چودھری نے مجھے کہا کہ ہاں یوسف، تمہارا باپ سچ بول رہا ہے۔ میں نے کہا، نہیں چودھری صاحب، میرا باپ سب جھوٹ بول رہا ہے۔ اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ ساری خرابی میرے باپ میں ہے، یہی اس راجو کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میری امی نے تو اسے بہت بار روکا، لیکن یہ اس کو بار بار پٹاتا ہے اور طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ آخر میری ماں کب تک برداشت کرتی، اس لیے میں خود اپنی ماں کو اپنے باپ سے دور لے گیا ہوں۔ پھر میرے باپ کو چودھری کہنے لگا، ہائے، سچ کیوں نہیں بتا رہا؟ تیرا بیٹا تو ایسا کرتا تھا، وہ بڑا مظلوم بن گیا تھا۔ میری طرف پھر نوکر کو کہنے لگا، جاؤ ذرا ڈنڈا نکال کے لے کے آ، میں اس کو بتاؤں کہ یہ جھوٹ کیسے بولتا ہے۔ میرا بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ چودھری کو کیا ہوا ہے، لیکن مجھے شرم آ رہی تھی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ابو کو پٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ نوکر گیا اور ڈنڈا لے کے آیا، چودھری کے ہاتھ میں دیا۔ چودھری نے کہا، پکڑ کے اس کو ادھر لے کے آؤ۔ اوپر میرے ابے کو کہا، چلو مرغا بن۔ وہ مرغا بننے ہی لگا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب بس مار رہے نا، آپ ہمارے حق دلوا دیں، ہمارا اور کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ پھر چودھری کہنے لگا، نہیں تو رک تو صحیح، میں اسے بتاؤں تو صحیح کہ عورت پہ ہاتھ اٹھاتے کیسے ہیں۔ پھر چودھری صاحب نے زور سے ڈنڈے میرے ابو پر برساتا رہا اور پھر اس کے آئے ہوئے گواہ بھی خاموش تھے، کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ 4-5 ڈنڈے ہی مارے ہوں گے۔ میں نے جا کے چودھری صاحب کو کہا، چودھری صاحب بس کریں، اس کے لیے بہت ہے، بس اسے بولیں کہ یہ ہماری زمینیں ہمارے حوالے کرتا ہے۔ پھر میرا وہ کہنے لگا، میں مرتا جاؤں، اپنی کمائی ہوئی زمینیں میں تم لوگوں کو نہیں دوں گا، تم لوگوں نے آج مجھے مروایا ہے۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا، میں بھی دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں دیتا۔ پھر اپنے ملازم کو بلایا، کہا، کدھر ہو؟ لے آؤ، جاؤ اس کو اور جاؤ اسے کمرے میں بند کر دو۔ میں تب تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ ان کا حق نہیں دے گا۔ پھر میرے ابو کو کافی لوگ سمجھانے لگے، کہنے لگے، دے دے، خواہ مخواہ ذلیل کیوں ہوگا، دینا تو تجھے ویسے ہی پڑے گا، کیونکہ چودھری بھی تو فیصلہ کر دیتا تھا، اسے ماننا ہی پڑتا تھا۔ لیکن میرا ابو بضد تھا کہ میں انہیں نہیں دوں گا، اور پھر چودھری نے میرے ابو کو کمرے میں بند کروا دیا۔ 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے، میرے ابو نے آواز دی، کہا کہ مجھے منظور ہے چودھری صاحب، مجھ سے غلطی ہوگی، میں ان کا حق دے دیتا ہوں۔ پھر وہ چودھری میرے ابو سے کہنے لگا، خالی ہے کہ نہیں، ماں کو بھی طلاق دو، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ پھر میرے ابو کہنے لگے، نہیں، میں اپنی بیوی کو طلاق تو نہیں دوں گا، آپ اسے بلوا دیجئے۔ چودھری صاحب، میں اس سے باہر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا۔ پھر میرا ابو کافی اصرار کرنے لگا، نہیں، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دلوائیے، میں اپنی بیوی کو منا لوں گا، ایک دفعہ ملوا تو دیجئے۔ پھر چودھری میرے ابو کو کہنے لگا کہ اچھا رخ، میں اس کو پوچھ کے آتا ہوں کہ تم سے ملنا چاہتی ہو یا نہیں۔ اب میں بڑا پریشان ہو گیا کہ کہیں میری امی ابو کے ساتھ صلح نہ کر لے۔ پھر میں فوراً اس کمرے میں گیا جہاں میری امی بیٹھی ہوئی تھی، جا کے اس کو ساری بات بتائی۔ میں نے کہا، امی، ابو سے سلام مت کرنا، ہمیں ہماری زمینیں بھی مل رہی ہیں اور تمہیں طلاق بھی، ہم کراچی جا کے بہت اچھی اور امیروں والی زندگی گزاریں گے۔ میری امی نے کہا کہ یوسف، تو پریشان نہ ہو، اس شخص کو میں صلح نامہ نہیں کروں گی۔ اور پھر اتنے میں چودھری میرے ابو کو لے کے آ گیا۔ میری امی کے سامنے میرا ابو میری امی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، اس کی منتیں کرنے لگا، حتیٰ کہ اس کے پاؤں بھی پڑ گیا۔ کہہ رہا تھا کہ خدا کے واسطے مجھے نہ چھوڑ کے جاؤ، میرے بچے، میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ میری امی نے کہا، یہ سب تو تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا نا، جب تم اس راجو کے پاس جا رہے تھے۔ بہرحال بس اب بہت ہو گیا، میں تم سے صلح نہیں کرنا چاہتی۔ اور پھر وہ چودھری
मेरे अब्बू को कहने लगा कि सुन लिया, 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, सारी जो भी ज़मीनें हैं उनके नाम बनती हैं, दोनों भाइयों के नाम लगा दे। और फिर मुझे इसी पंचायत में चौधरी ने बुलाया। मुझे कहा, यूसुफ 2 दिन के अंदर तुम्हारा बाप अगर तुम लोगों को ज़मीनें ना दे फिर मुझे आके बताना, मैं तुम्हें कहीं। चलो ठीक है चौधरी साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने इंसाफ का फ़ैसला किया। और फिर मेरा अब्बू भी सब अपने घर जा चुके थे। आज हम बहुत खुश थे क्योंकि फ़ैसला हमारे ही हक़ में हुआ था। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो डेरा खाली हो गया था। चौधरी मुझे कहने लगा कि यूसुफ तू अभी यहाँ से घर जा, तो अपनी अम्मी को यहीं छोड़ के जा, शाम में लेने आ जाना। अब मैं बड़ा परेशान था कि मैं क्या करूँ। चौधरी को मैं मना भी तो नहीं कर सकता था। मैंने कहा, अच्छा चौधरी साहब मुझे अपनी अम्मी से मिलने तो दें। फिर मैं गया। मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी मुबारक हो, फ़ैसला हमारे हक़ में हो गया है और 2 दिन के अंदर ही हमारी ज़मीनें भी मिल जाएंगी और अब्बू तुम्हें तलाक भी दे देगा। फिर हम कराची चलते हैं, लेकिन एक मसला हो गया है अम्मी। मेरी अम्मी कहने लगी, क्या हुआ यूसुफ? मैंने कहा, अम्मी फ़ैसला तो हो गया, लेकिन अब वो चौधरी कह रहा है कि तू अकेले घर जा, वो आपको फिर लूटना चाहता है। मेरी अम्मी ने कहा, तो क्या हुआ यूसुफ, इतना भी बेमरवत नहीं बनते, कितना बड़ा काम किया है चौधरी ने, आखिर उसका ये हक़ तो बनता है। मैं खुद ही उसे सुकून दूंगी, अगर वो नहीं भी बोलता तब भी मैं रुकी जाती। मैं बड़ा हैरान था। मेरी अम्मी के अब रंग बदलने लगे थे, वो चौधरी से इम्प्रेस हो रही थी। मैंने कहा, अम्मी पूरी रात आप यही रही हैं, अभी तक तुम्हारा दिल नहीं भरा? फिर मेरी अम्मी कहने लगी, यूसुफ कुछ दिन की तो बात है, फिर तुम कराची चले जाएंगे। मैंने कहा, कराची तो चले जाएंगे, लेकिन वो चौधरी कह रहा था कि हम तुम लोगों को वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेंगे और वहाँ भी चक्कर लगाते ही रहूँगा। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, कोई बात नहीं, आखिर वो हमारे इतने काम तो कर रहा है और वैसे भी हमें फ़ायदा है, उसके बिना ही रुकनी पड़ी। यूसुफ तुझे मेरी चौधरी ने कहा है तू जाना है, फिर मुझे ले जाना। मैंने कहा, चौधरी तो कह रहा था कि शाम को आना। उसने कहा, अच्छा तो जा, फिर शाम को आ जाना। फिर मैंने अम्मी के 6 बज गए, मैं उससे ज़्यादा शाम की और क्या होगी। फिर मेरी अम्मी कहने लगी कि तू रात को 10 बजे आना और घर जाके यही बोलना कि अम्मी वहाँ काम कर रही है। कल वाला झूठ बोल देना। अब मेरी अम्मी का भी दिल यही चाह रहा था कि वो चौधरी से अपना काम करवाए और फिर मैं मजबूर होकर खामोश होकर वापस घर आ गया। मैंने सारी कहानी अपने बहन भाई को सुनाई। आज हमारे घर खुशी का माहौल था। फिर कनीज़ मेरी बहन आई मेरे पास, मुझे कहने लगी, भाई मुबारक हो, आप लोगों को तो आपका हक मिल गया, आप मेरे बारे में कब सोचेंगे? मैंने कहा, क्या सोचना है कनीज़? वो कहने लगी, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि मेरी शादी उस पठान से करवा दो। मैंने कहा, कनीज़ अभी तो मसला ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमें ज़मीन मिलनी है, हम उसे बेचेंगे, कराची सेटल होंगे और फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम्हें कराची पसंद कोई आ गया तो ठीक है, वरना मैं उसी पठान को वहीं कराची बुला के तुम्हारी शादी करवा दूँगा। फिर वो कहने लगी, भाई याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मैंने कहा, हाँ कनीज़, अच्छा एक काम कर, आज रात का कोई प्रोग्राम बनाना। फिर वो कहने लगी, हाँ भाई मैं भी यही सोच रही हूँ, जब से मैंने आपका गाजर हाथ में लिया था तब से मुझे उसके खाने की तलब महसूस हो रही थी, तो आज कोशिश करते हैं कि रात को उसे खा लिया जाए। मैंने कहा, चलो ठीक है कनीज़, मैं जा रहा हूँ अभी दुकान पे, ताकि दुकान का तो पता करूँ। ये 2-3 दिन से मैं दुकान पे तो बैठा ही नहीं हूँ सही से। पर मैं वापस दुकान पे आया तो मेरे दोस्त का छोटा भाई बैठा हुआ था। फिर मैंने उसे कहा कि हाँ सुना, मज़ा आ रहा है दुकान चलाने में, चला लोगे अगर मैं कराची शिफ्ट हो गया? वो कहने लगा, हाँ हाँ उस्ताद जी, क्यों नहीं, बहुत अच्छी दुकान है, आप तो ये दुकान बेच ही दो, मैं ख़रीद लूँगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं बेचने के लिए नहीं, फ़िलहाल तुम बैठो, मैं कराची जाके अगर वहाँ मेरा कोई अच्छा सेटअप बन जाता है तो फिर मैं दुकान तुम्हें बेच दूँगा। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने उसको औरत को फ़ोन किया जिसके पास मैंने रात गुजारी थी। मैंने कहा, मैं दुकान अभी छोड़ दी है और हमें ज़मीनें भी मिल रही हैं, फ़ैसला हमारे हक़ में हो गया है, बस तुम कराची की तैयारी रखो, 4-5 दिन लगेंगे, मैं अपनी ज़मीनें भी बेच के हम कराची में कोई अच्छा सा घर ले लेंगे। वो काफ़ी खुश हो गई, वो समझ रही थी कि शायद मैं उससे शादी करूँगा। फिर वो कहने लगी, हाँ यूसुफ, कराची 2 मंजिला घर बनवाना, नीचे तुम्हारी अम्मी और अब्बू रहेंगे और ऊपर तुम और मैं रहेंगे, आखिर कल को हमने शादी भी तो करनी है। फिर मैंने उसे कहा कि मैं आपको सीधी बात बता दूं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता,
मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता हूँ। मैं अपना कारोबार बड़ा सेट करना चाहता हूँ। इसके बाद देखूँगा। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। तुम्हें कराची चलना है तो चलो, इस आसरे में मत चलो कि मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर वो कहने लगी, यूसुफ कोई बात नहीं, तुम एक दफ़ा कराची तो ले चलो मुझे, मैं तुम्हें सुकून ही इतना दूंगी कि तुम मुझे खुद तरसोगे मेरे साथ शादी करने के लिए। और फिर वो मुझे कहने लगी, यूसुफ आज रात तुम मेरे घर आओगे। फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं अपनी बड़ी बहन से वादा करके आया था कि मैं उसके साथ सुकून हासिल करूँगा। फिर मैंने उस औरत को कहा कि नहीं, आज नहीं, अभी मैं 2-3 दिन बाद बिज़ी हूँ, मुझे वो ज़मीनें निकलवानी हैं और फिर कराची चल के हम सुकून से करते रहेंगे। फिर वो कहने लगी, यूसुफ आ जाते तो बेहतर होता। चलो ठीक है, तुम इन कामों से फ़ारग हो जाओ और फिर मिल लेंगे, कौन सा तुम भागे जा रहे हो। मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन करके बाहर बुलाया। मैंने कहा, काशिफ ज़रा बाहर आओ। वो बाहर आया। हमने अपने छोटे शहर के एक होटल पे जाके बैठे। मैंने कहा, काशिफ तुझसे बात करनी है। घर पे तो तुम्हें पता है ना, मेरी बहनें हैं, इसके सामने बात नहीं कर सकता। फिर वो कहने लगा, हाँ हाँ भाई बताएं। मैंने कहा, भाई ज़मीनें हमारी मिलने वाली हैं, हम आपस में बंटवारा कर लेते हैं कि किसका कितना हिस्सा बनेगा। पर वो कहने लगा, हाँ भाई जो भी आप कहें मुझे मंजूर है। मैंने कहा, तुम्हारा और मेरा हिस्सा मिला के अम्मी का भी कुछ मिलेगा और थोड़ा बहनों का भी, सब टोटल मिला के 6-7 करोड़ की ज़मीन बनेगी। हम कराची चल के अच्छा सा घर लेंगे और फिर हम अच्छा सा कारोबार करेंगे। वो हम सबका बराबर का होगा, जितनी बहनों का हिस्सा होगा वो भी इसमें डालेंगे। वो घर तुम्हारा और मेरा आधा था, जो हम कारोबार करेंगे वो भी आधा होगा, लेकिन ज़मीनें भी जितनी की भी बेचेंगे वो पैसे मैं ही रखूँगा, क्योंकि घर ख़रीदना और कारोबार सेट करना वो मैं ही करूँगा और फिर तुम्हें बताता रहूँगा कि क्या चीज़ कितने की है। ये हिसाब किताब में खोट नहीं होगी, इस चीज़ की तुम फिक्र मत करना। फिर वो काशिफ कहने लगा, हाँ हाँ भाई आपने क्या बात कर दी, आप मेरे बड़े भाई हो, अब आप मेरे अब्बू हो। काशिफ मेरी बात बहुत आसानी से मान गया था। अब सब घर वालों का हिस्सा मेरे ही हाथ आने वाला था। मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था। फिर काशिफ कहने लगा, भाई आपसे एक बात करनी थी। मैंने कहा, मुझे पता है तू यही बोलना चाहता है ना, तूने जो शादी वाली बात बोली थी। वो कहने लगा, हाँ भाई। मैंने उसे कहा कि तुम्हें एक दफ़ा कराची आने तो दे, वहाँ पर थोड़ा सेटल होने दे, हम खुद उस लड़की को घर वालों के साथ चलेंगे, हमारा रजिस्टर देकर वो मान जाएंगे। तो वो पहले मुझसे ये सेटिंग मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊँगा। फिर वो भी खुश हो गया और फिर हम रात को खाने सामान लेकर घर आ रहे थे तो भाई पूछने लगा, भाई हमें अम्मी नहीं आई, वो कहाँ, चौधरी का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो रात को जाके उससे भी ले आऊँगा। चलो हम लोग घर आए। मैंने वो खाने का सामान अपनी बहनों को दिया। मैंने कहा, रात को खाने की तैयारी करो। फिर मेरी बड़ी बहन कनीज़ भी मेरी अम्मी के बारे में पूछने लगी। कहने लगी, भाई क्या हुआ, अम्मी क्यों नहीं रात, कल भी पूरी रात नहीं आई। मैंने कहा, वो काशिफ ने तुम्हें बताया तो होगा। फिर वो कहने लगी, हाँ बताया तो था, लेकिन हम उसकी नौकर थोड़ी हैं, हमारी अम्मी को उसने काम पे रख लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं करनी, ये बड़े लोग हैं, उसने ऐसे हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं किया, उनकी थोड़ी बहुत तो खिदमत करनी ही पड़ेगी। मैं अभी ये बात कर ही रहा था कि बाहर हमारी हवेली का दरवाज़ा बजने लगा। काशिफ गया देखने तो भागता हुआ आया। कहने लगा, भाई वो अब्बू आए हैं, 2-3 मोहल्ले के मोअज़्ज़ज़ शख्स को भी लेके आए हैं। फिर मैंने कहा, यार क्यों आ गया है। फिर मैं बाहर गया। मैंने कहा, जी अब्बू बताएं। मेरा अब्बू कहने लगा, यार यूसुफ मुझसे गलती हो गई है, घर की बात है, घर में रहने दो, मैं सारी ज़मीनें तुम लोगों के नाम लगवाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे अकेला छोड़ दो। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। मैं उस राजू के पास चला गया, आइंदा मैं नहीं जाऊँगा। जिस अंदाज से मेरे अब्बू ने बोला था, अब मेरे दिल भी पिघलने लगा था। शायद पहली दफ़ा मुझे बाप का सच्चा प्यार नज़र आ रहा था, जो उसने पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाया था। फिर मैंने अपने दिल में सोचा, अब्बू अब तो बहुत देर हो गई है, हम तो कहीं आगे निकल गए हैं। फिर मैंने कहा, अब्बू अच्छा आप अभी घर जाएं, अम्मी घर पे नहीं है, अम्मी को आने दें, हम मशवरा कर लें, फिर मैं आपको बताते हैं। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, हाँ यूसुफ बस यार एक दफ़ा सुलह करवा दे, मैं सारी ज़मीनें तुम लोगों के नाम करवा दूँगा, जो जो कहोगे मैं वो भी कारोबार तुम लोगों को लगवा दूँगा, बस यार मुझे छोड़ के ना जाओ। अब मैं परेशान हो गया कि मैं क्या करूँ, बस दिल में कशमकश चल रही थी। और फिर रात के 10 भी बज गए। मैंने बाइक बाहर निकाली और सीधा चौधरी के डेरे पे जा पहुंचा तो वही मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला और मुझे कहा, तुम बैठ जाओ।
चौधरी साहब अभी तक लगा हुआ है, वो निकला ही नहीं। फिर मैं जाके उसी कुर्सियों पर दोबारा बैठ गया और फिर मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा और आधा घंटा लग गया। मेरी अम्मी बाहर आई तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ को सर पे उठा के आई हो। मेरी अम्मी से भी चला नहीं जा रहा था। वो आई, मुझे कहा, यूसुफ चौधरी ने तो मेरी जान ही निकाल दी, चलो घर चलो, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं सोना चाहती हूँ। मैंने कहा, अम्मी क्या क्या? चौधरी ने अम्मी ने कहा, मैं अभी नहीं बता सकती। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिल सके।